repeat. आज हम करेंगे एसिड बेसिस एंड साल्ट. तो starting ऐसे है, we use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common, salt, sugar and vinegar. So in this paragraph it is written that in our daily life, in our life, we have a number of substances we see like lemon, turmeric and salt, sugar and vinegar. So this is a table that it is recorded to us that we should not taste anything like a plant, a harmful plant. We do not know that it is can poison us. So we should not taste it without they recommend before it is not tell to you that taste it. So you have to use. So do not taste anything unless asked to do so, because it is a harmful plant. It is a harmful plant and can infect us. If a plant is harmful to us and if we eat its leaves, so it can poison us. And do not touch anything. So if it is a acid, a chemical acid in a science lab, so the acid present in the science lab can be more acidic. So we should not taste it. We should not taste it or touch. We taste or touch. Do not do anything, because if we will do so, we don't know that they are harmful or good for us. We do not know. If it is good, so our parents can tell, and it is not good, so we should not eat. Lemon juice, it is sour. Orange juice is also sour. Vinegar is also sour. Curd is also sour. Tamarind is also sour. Sugar is sweet. Common salt is salty. Amla is also sour. Baking soda is bitter. Grapes are sour. Unripe mangoes are sour. So we can see that most of these things are sour. You find that we can find this that some substances are sour and some of them are bitter and some are sweet and some are bitter. So curd, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour. In this table these things taste sour. So this substance taste sour. The substance that taste sour are called that contain acids. See, so curd, lemon juice, orange juice, and vinegar. All of them tasted sour. So by the way, they taste sour. So it means that these substances contain acid, and the chemical nature of substance is acidic. So they contain acids. So in this we have these are natural acids. So lemon juice, orange juice, vinegar, curd, etc. are natural acids. Though they do not insect to us, or they are not good to us also. Means they are not harmful to us, and basic acids, chemical acids are harmful to us, and natural acids are not harmful to us, like our fruits, vegetables also contain acids, but they are not harmful to us. So the word acid comes from the Latin word
known as acid. Acid. Okay. The acid word comes from the Latin word acid. Acid means sour, khatta. The acid in these substances are natural acid. So the acids in these substances, the acid, I have told you the acid that are present in curd, lemon juice are natural acids because curd lemon juice contain acid, but they are not harmful to us. Because why they are not harmful to us? Because they are natural acids. Why they are natural acids? Because they are obtained from the nature. What about baking soda? Does it also taste sour? So in this paragraph it is written that we have read that these things contain acid because they are soap. But the baking soda, what about baking soda? क्या ये भी खट्टा होता है? If not, what is its taste? अगर नहीं है, चलो मान लो कि ये सौर नहीं है, तो इसका टेस्ट है क्या? Since it does not taste sour, it means that it has no acids in it. So इसका मतलब है कि अगर वो कोई भी चीज़ है जो ये बिल्कुल गारंटी है, कोई भी चीज़ खट्टी होती है वो सौर होती है, और जो भी चीज़ बिटर होती है वो बेस होती है, और जो बिटरी और सोपी टच होता है उसको हम बोलते हैं बेस. उसमें बेस होता है और उन चीज़ों को बोलते हैं बेसिक. Substance like this which are bitter and taste and feel soapy. So in this, if a thing, एक चीज़ वो खट्टी है लाइक लेमन, तो ये 100% गारंटी होती थी कि वो सौर होगी ही होगी. एंड ए थिंग दैट इज बिटर इन टच, बिटर और सोपी इन टच, इट इज़ बेस. बट सी, कुछ चीज़ें होती हैं जो मीठी होती है लाइक कोलगेट, पर वो कोलगेट मीठी होती है, पर हर एक बेसिक चीज़ स्वीट बिटर होती है, और कोलगेट मीठी होती है, बट इट कंटेन्स बेस. सो समटाइम्स इट डज लाइक दिस, बट ये श्योर होता है कि 100% की जो भी खट्टी चीज़ होती है वो पक्का होती है बेस. वो पक्का बेस होती है. नहीं सॉरी, जो खट्टी चीज़ होती है वो पक्का एसिड होती है. बट कुछ एसिड्स होते हैं जो मीठे हो जाते हैं, बिटर हो जाते हैं, बट वो एसिड रहते हैं. तो अब हमें ये पता नहीं चलता कि ये जो एसिड हैं वो कौन से हैं. अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कुछ मीठी चीज़ एसिड निकल जाए तो हमें प्रॉब्लम होती है. इसके लिए हम करते हैं कुछ चीज़ें, इनको बोलते हैं इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स हमारी नेचुरल चीज़ों से बनते हैं, एंड उन इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि वो एसिड है या बेस है. कोलगेट एक बेसिक होता है. The indicators change their color when added to a solution containing an acid or a basic substance. So the indicators change their color. इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब किसी भी चीज़ में डाले जाते हैं. जैसे एक चीज़ है, हमने ले लिया हाँ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा में हम इंडिकेटर डालेंगे तो वो हमें बता देगा अपना कलर चेंज करके कि वो क्या है, वो बेस है या एसिड है. तो देखिए, ये जो नेचुरल हमारे होते हैं, जो हम अपनी आसपास की चीज़ों में जो इंडिकेटर्स देखते हैं, वो है टर्मरिक, लिटमस एंड गुड़हल मीन्स चाइना रोज के पेटल्स. ठीक है. So first we will see of litmus. Litmus is a natural dye. Natural dye means litmus is a thing that is obtained from nature.
हाँ, most commonly used natural indicator is litmus. So the rarely thing used for natural indicator is litmus. It is taken from like lichens. जो हमने पढ़ा होगा, जो एल्गा और फंगी का होता है उसको लिकेंस कहते हैं, एंड उसके पास वो चेंज हो जाता है. सो फिर अब हम देखें तो फिर वो पर्पल कलर अपना चेंज करता है डिस्टाइल्ड वाटर, मतलब गंदे पानी में वो अपना कलर इंडिकेटर पर्पल कर देता है. एंड व्हेन इट इज एडेड, व्हेन अगर देखिए ये एक एसिड है, ओके, ये एक एसिड है, इट टर्न्स रेड. अब ये है हमारा लिटमस स्ट्राइप. अब अगर हम इसमें डालेंगे एसिड में तो फिर ये अपना कलर चेंज कर लेगा ब्लू. अगर मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा. एक लिटमस पेपर होता है, उसकी 2 स्ट्राइप्स होती हैं, रेड स्ट्रिप्स एंड ब्लू स्ट्रिप्स. सो ब्लू स्ट्रिप्स में क्या होता है, अगर ये सॉल्यूशन है, रेड स्ट्रिप डालेंगे अगर हम, तो अगर ये एसिड हुआ, ये सॉल्यूशन एसिड हुआ, तो रेड इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देगा. नो रेड इंडिकेटर रेड ही रहेगा एसिड के साथ. अगर ये चीज़ एसिड है और हमारा इंडिकेटर रेड स्ट्रिप है, सो ये एसिड के साथ रेड रहेगा. एंड अगर हमारा बेस है, अब यहाँ पे हमारा एसिड नहीं है, बेस है, एंड हमने रेड स्ट्रिप डाली, तो वो अपना कलर ब्लू कर लेगा. एंड अगर ये हमारे पास ब्लू स्ट्रिप है, तो अगर हम ब्लू को अंदर डालेंगे तो एसिड के साथ इट चेंज विद रेड चेंज हो जाएगा अगर हम ब्लू स्ट्रिप को डालेंगे. और अगर हम डालेंगे तो फिर जब वही चीज़ें, तो अगर ब्लू जाएगा तो रेड चेंज हो जाएगा एसिड के साथ. ठीक, ब्लू जाएगा, अगर ब्लू है, ब्लू पेपर स्ट्रिप है, उसको अगर हम, तो मैं आपको एक लास्ट बार बताती हूँ कि ये ब्लू पेपर स्ट्रिप है, तो ये ब्लू कलर से रेड हो जाएगी इसका एक कॉर्नर. एंड अगर ये ब्लू पेपर स्ट्रिप को हम बेस में डालेंगे, अभी तो एसिड में डाला था तो रेड हो गई, अगर बेस में डालेंगे तो फिर ये ब्लू की ब्लू रहेगी, अपना कलर चेंज नहीं करेगी. ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, लिटमस एंड रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर एंड लिकेंस का पेड़ दिखाया हुआ है. अब ये है नेम ऑफ एसिड, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा. सो ये हमारे सारे एसिड्स के नेम. एसिडिक एसिड, ये हमारा पाया जाता है विनेगर आप देखेंगे तो उसमें होता है हमारा एसिडिक एसिड. अब जब आंट हमें काट लेती है तो वो हो जाता है फॉर्मिक एसिड. एंड सिट्रिक एसिड, ये किस टाइप का होता है एसिड, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है सिट्रस फ्रूट्स, मतलब सिट्रिक एसिड मतलब खट्टा खाने में, खट्टे फ्रूट्स में ये प्रेजेंट होता है, लाइक ऑरेंजेस, लेमन्स ले लीजिए आप, एंड मौसमी में भी होता है ये. लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है कर्ड में, दही में होता है हमारा लैक्टिक एसिड, वो भी खट्टी होती है ना.
समटाइम्स। ऑक्सैलिक एसिड होता है हमारा स्पिनच में, जो हमारा स्पिनच होता है उसमें हमारा प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड। और एब्जॉर्बिक एसिड होता है जिन थिंग्स में हमारा होता है विटामिन सी। एंड विटामिन सी आपको पता होगा तो खट्टी चीज़ों में होता है। विटामिन सी हमारी खट्टी चीज़ों में था। इसमें भी गिवन है सिट्रस फ्रूट, मतलब खट्टे फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लेमन और मौसम्बी। आंवला भी खट्टा होता है। तो फिर एब्जॉर्बिक फूड में मीन्स जिस एब्जॉर्बिक फूड मतलब जिन फूड में विटामिन सी होता है वो होते हैं हमारे खट्टे फ्रूट्स। विटामिन सी प्रेजेंट होता है खट्टे फ्रूट्स में लाइक आंवला एंड सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, लेमन्स एंड मौसम्बी। अब टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड हमारा हो जाता है टैमरिन, मतलब इमली में हो गया, अंगूरों में हो गया एंड मैंगोज, आम जो अभी अच्छी तरह से पके नहीं हैं। एंड ये जो भी सारे एसिड्स थे ना, ये सारे नेचुरल एसिड्स थे। अब है नेम ऑफ बेसिस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये पाई जाती है हमारे लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये विंडो क्लीनर जो इससे आपकी मम्मा विंडो क्लीन करती हैं वो होती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं हमारे सोप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। आपने कैड भी देखी होगी एक दवाई की, दैट ये हमारे जब हमारे पेट में एसिड हो जाता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर्मूला उस एसिड को बहुत जल्दी आराम देता है। सो ये सारे बेसिस है, बेसिस एसिड को मिटा देते हैं। जो बेसिस होते हैं वो एसिड को मिटा देते हैं, मतलब मिटा देते हैं। सो ये बेस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। या हमारे पेट में जब एसिडिटी होती है तो बेसिकली हर एक दवाई में, एसिडिटी की दवाई में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। अब ये है हमारा बताया हुआ है कि कैसे बनते हैं हमारे इंडिकेटर्स। So let's read. Mix some water with lime juice in a plastic cup, tumbler, test tube. Put a drop of the above solution on a strip of the red litmus paper with the help of a dropper. Is there any change in color? Repeat the same exercise with the blue litmus paper. Now down if there is any change in color. Perform the same activity with the following substance. पहले मैं इतना समझाती हूँ। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए टेस्ट ट्यूब, पुट ए ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन स्ट्राइप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। सो क्या करो आप, पानी लो, some water with the lemon juice, okay, and put it in a test tube, tumbler or a plastic cup. So now take a dropper और स्पून तो उसके ऊपर डालने के लिए आप ले सकते हैं, ओके। हम तो या तो हम सीधा लिटमस पेपर से चेक कर लें, स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं, या तो हम सीधा बिकॉज या तो हम रेड लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं या जो लिटमस सॉल्यूशन आता है उसमें। तो उस चीज़ में कोई चेंज आया, रिपीट यही सेम एक्सरसाइज करो ब्लू लिटमस पेपर से। लेमन जूस में एसिड होता है तो वो रेड के साथ रेड रहेगा, और ब्लू में एसिड ब्लू बेस के लिए होता है, सो फिर वो करेंगे तो रेड हो जाएगा। सो अब यही सेम एक्टिविटी परफॉर्म करनी है हमें टैप के वाटर से, डिटर्जेंट सॉल्यूशन से, एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर. So now we can do this with detergent, aerated drink, soap, shampoo, common salt solution, sugar, vinegar, baking soda, milk of magnesia, washing soda, lime water. अगर पॉसिबल है तो अगर आपके घर में डिस्टाइल्ड वाटर, गंदा पानी हो, तो उसमें भी आप एक बार चेक करके देखिएगा. और इन दिस टेबल
आप टेस्ट सॉल्यूशन का नाम लिखेंगे और वो किस पे हुआ वो भी लिखेंगे इस टेबल में. ओके, इन योर टेबल आर देयर एनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन व्हिच लिटमस हैड नो इफेक्ट. सो सी, अब इसमें लाइन गिवन है कि आपने टेबल में देखा होगा तो आपको कुछ ऐसा मिला जो सब्सटेंस आपने लिटमस पेपर से चेक किया और कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा जिसका उस ना तो वो रेड हुआ ना ब्लू, सो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस. लाइक वाटर न्यूट्रल होता है. अगर हम बेस तो सी एसिड का दर ख़त्म कर देता है, न्यूट्रल एसिड को कम कर देता है. तो पूरा नहीं हटा सकता, वो कम कर देता है. बट जैसे हम रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर लेंगे ना, सो फिर उससे कुछ फ़ायदा नहीं, उससे मतलब इसमें कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. न्यूट्रल चीज़ें जो होती हैं उन पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. जो भी हम ये सब करते हैं ना, न्यूट्रल ना तो एसिडिक होता नहीं बेसिक होता, तो वो ये दोनों चीज़ें नहीं होता. सो ये इफ़ेक्ट नहीं कर पाता रेड और ब्लू लिटमस पेपर पे. So now turmeric is another natural indicator. Wait, line is given है. To prepare lime water, तो इसमें बताया लाइम वाटर कैसे बनाना है. आपने कभी लाइम चूना जिसको बोलते हैं हिंदी में, इन वाटर इन अ बॉटल, वाटर में लो और इन अ बॉटल, वाटर लो बॉटल में और उसमें चूना डाल दो. स्टिर द मतलब उसे कीप इट फॉर, उसे पहले हिलाओ फिर थोड़ी देर के लिए रख दो. प्योर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर. पॉर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, ऊपर से थोड़ा सा ऐसे डालो तो जो भी होगा वो लाइम वाटर होगा. टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर. आपके घर में हल्दी पाउडर होता होगा, वो एक स्पून लो, टेबल स्पून. उसमें थोड़ा सा पानी डालो, उसको हिला के उसका एक पेस्ट बना लो. मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर जो होता है, जो ये एब्जॉर्ब कर लेता है चीज़ें जल्दी. तो वो जो भी आपने सॉल्यूशन बनाया है वो आप ब्लॉटिंग पेपर पे रख दो और सूखने के लिए रख दो. अब वो जब सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा उनको आप स्ट्रिप्स में काट दो. और ब्लॉटिंग पेपर में इतनी शक्ति होती है कि वो पूरा उसे एब्जॉर्ब कर लेता है. अब आपके पास होगा येलो पेपर. पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर. अब एक ड्रॉप डालो सोप सॉल्यूशन की उस पर और ऑब्जॉर्व करो. ये मदर्स डे पे अपना वो बना सकते हैं कार्ड अपनी मम्मा के लिए. सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट दैट ये हमने सीख लिया कि कैसे बनाना है. बट आप टर्मरिक पेपर पे डाल सकते हैं. टर्मरिक पेपर आपसे हो जाएगा और फिर आप एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं. अब चाइना रोज से कैसे बनता है. चाइना रोज का अब हम पढ़ते हैं. इंडिकेटर एसिड बेस, अब आगे पढ़ते हैं. वाटर, आई थिंक वेयर डज इट स्टार्ट्स फ्रॉम. कलेक्ट सम, सो जो गुड़हल का हिबिस्कस के पेटल्स होते हैं ना, उनको आप एक बीकर या किसी प्लास्टिक कप में रख लीजिए, बीकर में रख लीजिए. गर्म पानी डालिए उसमें. कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड. उसको कीप द मिक्सचर, वो जो हमारा मिक्सचर बना है पानी और उसके साथ गर्म पानी के साथ उसको कुछ टाइम के लिए रख लीजिए जब तक वो जो पानी है वो कलर्ड नहीं हो जाता. अब ये तो जल्दी बन गया. एंड दिस कलर्ड वाटर, जो कलर्ड वाटर आता है वो हमारा इंडिकेटर है. अब उसकी 5 ड्रॉप्स लेके आप जो भी जिस पे टेस्ट करना चाहते हो उस पर डाल दीजिए. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिड और बेस. तो अब एसिड एंड बेसिस पे क्या होता है, जब उस पर चाइना रोज का जो इंडिकेटर होता है, चाइना रोज का इंडिकेटर, सो सी जब हम लाइकेंस का
रेड और ब्लू वो चेंज करता है अपना। उसके क्या होते हैं पेपर्स, रेड एंड ब्लू, एंड वही दोनों चेंज करते हैं रेड एंड ब्लू में। बट जो चाइना रोज़ होता है, चाइना रोज़ अपना चेंज करता है एसिडिक सॉल्यूशन डार्क पिंक या मैजेंटा कलर में। एंड जो बेसिक सॉल्यूशन होता है, बेसिक स्ट्राइप, वो ग्रीन में चेंज करता है बेसिस को। अगर एक बेसिक सॉल्यूशन है वो, अगर एक बेसिक सॉल्यूशन में हम एक ड्रॉप डालेंगे चीज़ की, मतलब बेसिक चीज़ सॉल्यूशन डालेंगे चाइना रोज़ का, अगर वो बेसिक होगा तो वो ग्रीन में चेंज हो जाएगा, और अगर वो एसिड होगा तो वो या डार्क पिंक या मैजेंटा में हो जाएगा। चाइना रोज़ में ऐसा होता है। Coffee is brown and bitter in taste. It is an acid or base. Don't give the answer without any taste. You are in the dark with its taste. So आप इसका आंसर कमेंट करना कि कॉफ़ी एसिडिक होती है बेसिक, और ये आप टेस्ट करना थोड़ी सी कॉफ़ी लेके। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट वेट। हाँ, वी विल सी कि चैप्टर कितना लंबा है, आप एक दिन में कितना कर पाओगे। 1 2 3, only 3 pages are left, so we are ending our this video here, and in part 2 we will start from here till here, factory waste. So tata, stay home, stay safe. Please guys, like my video, subscribe my channel. मैंने देखा मेरे व्यूज़ तो इतने सारे हैं बट लाइक कोई नहीं करता, क्यों? मैं समझाया समझ नहीं आता। कभी खुद वीडियो बनाओ, कोई लाइक ना करे, कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा या नहीं बताओ? इतनी मेहनत से बनाते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे पढ़ लेंगे, बट नहीं, आप तो पढ़ते भी हैं, अगर देख भी लेते हैं तो फिर लाइक भी नहीं करते। अगर नहीं है, मतलब अच्छी नहीं लगती तो बता दो मुझे, नहीं बनाऊंगी, या फिर मैं और प्रैक्टिस करूंगी अच्छी बने। सो बाय बाय, कीप योरसेल्फ हेल्दी।